हेलो व्यूवर्स। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु सत्येंद्र में स्वागत करता हूं और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा और आप मेरे वीडियोस देख सकेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। Dear students, this is first lesson of class 6 English 1. The title of this lesson is Tom has a toothache, and some special words are given under this title: self, family, home, friends, and pets. Students, these words are going to be used in this chapter, and the meaning will be explained to you in between the lesson. Before starting this chapter, I would like to discuss words with meaning given in this lesson. So let's start with the word meaning. First word is intervening. Here, according to the chapter, the meaning of intervening is occurring in between. Now, the second word is canvassed. The meaning of canvassed is try to discover some information by asking. Next word is fetters. The meaning of fetters is chains used to keep someone prisoner. Next word is colicky. Colicky means suffering from a severe pain in the stomach. Next word is odious. The meaning of odious is disgusting or extremely unpleasant. Exertion. The meaning of exertions is physical or mental efforts. Next word is aggravated. The meaning of aggravated is annoyed or exasperated. Next word is joggle. Joggle means move or make somebody move. Rubbish. Rubbish means rubbish. Now, next word is mortified. Mortified means dead and decayed. Next word is outrageousness. The meaning of this word outrageousness is the quality of being shockingly bad or improper. And next word is row. The meaning of this word is a noisy argument. Now, my dear students, we are proceeding towards next section of the chapter, cross circular connection. In this section, we are going to have some important information which will be useful to understand the upcoming chapter. Here, dentistry, the branch of medicine that deals with oral health and hygiene, is one of the oldest branches of medicine. डेंटिस्ट्री क्या है?
डेंटिस्ट्री मेडिसिन का एक ऐसा ब्रांच है जो काफ़ी समय से, कह सकते हैं प्राचीन काल से, ओरल हेल्थ और हाइजीन को डील करता आया है। ओरल हेल्थ एंड हाइजीन मतलब मुंह और माउथ कैविटी के अंदर की जो भी हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनके ट्रीटमेंट का ये एक ब्रांच है जिसको डेंटिस्ट्री कहते हैं। पीपल हु स्पेशलाइज्ड इन हेल्पिंग others to deal with tooth problems existed as long as 2600 BC in ancient Egypt and slightly later in ancient Greece and Rome. डेंटिस्ट्री कोई नई ब्रांच नहीं है, काफ़ी पुरानी ब्रांच है मेडिकल साइंस की। 2600 BC से इस ब्रांच का प्रयोग देखा जा सकता है एंशियंट इजिप्ट में। इसके बाद इसका प्रयोग एंशियंट ग्रीस और रोम में भी देखा गया। हाउएवर पीपल लिविंग एट दिस टाइम may not have had as many cavities as we do in modern times because they didn't consume as much sugar and processed food. Ancient toothpaste may have included things like eggshells, bones, and perfume agents. The Greeks even used mint, which is found in toothpaste even today. आज भी जो टूथपेस्ट हम लोग मॉर्निंग में और बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट हम जिन टूथपेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम टूथपेस्ट्स में आपको मिंट मीन्स पुदीना का यूज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। Now, my dear students, we are moving towards next section about the author of this lesson. The author of the lesson, Tom has a toothache, is Mark Twain. The lifespan of Mark Twain is 1835 to 1910. It means this author was born in the year 1835 and he passed away in the year 1910. You can estimate his average period of his life, that is around 75 years. The pen name of Mark Twain is Samuel Langhorne Clemens. He was an American novelist and publisher. Twain quit school to be an apprentice to a printer where he learned how to typeset and print books and newspapers. This was the trade he worked in many years while also educating himself through extensive reading. He is best known for his series of books featuring Tom Sawyer, especially the novels The Adventure of Tom Sawyer and The Adventure of Huckleberry Finn. Now, my dear students, we are coming on the chapter
the main story of the chapter. Here, a young boy experiences Monday blues and tries to invent a reason to skip school. प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूल नहीं जाना चाहते और स्कूल न जाने के लिए बहुत सारे बहाने इन्वेंट करते रहते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वी आर नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न और दैट रीज़न. हियर इन द स्टोरी you will see there is a character named as Tom, and he doesn't like to go to school, and for that he is inventing different reasons. Here I would like to tell you about the meaning Monday blues. Monday का दिन निराश करने वाला दिन टॉम को लगता है, बिकॉज मंडे इज द बिगनिंग ऑफ द वीक. दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एंड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे स्कूल यूजुअली रन्स. और जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए मंडे का दिन निराश करने वाला दिन होता है. तो ये जो बच्चा है, टॉम है, यंग बॉय है, मंडे का दिन ऐसे बहुत ही निराश करने वाला दिन लगता, बहुत ही उबा देने वाला दिन लगता, क्योंकि यहीं से सप्ताह के दिनों का प्रारंभ होता है. तो वो प्रयास करता है, कोशिश करता है कि स्कूल जाने से किस तरीके से बचे. तो नाउ द मेन स्टोरी इज कमिंग. Monday morning found Tom Sawyer miserable. टॉम सॉयर को मंडे का जो मॉर्निंग होता है, मंडे की जो शुरुआत होती है, काफ़ी मिजरेबल, काफ़ी कष्टदायी लगता है. मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज इट बिगन another week's slow suffering in school. He generally began that day with wishing he had no intervening holiday. It made the going into captivity and fetters again so much more odious. जनरली ये जो मंडे का दिन है, इस दिन वो प्रार्थना करता है कि उसकी छुट्टियों में फिर कोई इंटरवेनिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़, ऐसी बाधा उत्पन्न न हो जो छुट्टियों का आनंद उसका खराब करती हो. तो वो जनरली विश करता है कि ही हैड नो इंटरवेनिंग हॉलीडे एंड इट मेड द गोइंग. और जब वो स्कूल जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि स्कूल जाता है, ऐसा उसे लगता है ही इज़ गोइंग इनटू कैप्टिविटी, वो किसी कैद खाने में जा रहा है. एंड फेटर्स अगेन, और उस कैद खाने में जाकर वो बेड़ियों में, जंजीरों में जाकर बंध जाने वाला है. और ये चीज़ उसे बहुत ही अनप्लीजेंट लगती है. टॉम ले थिंकिंग. तो टॉम स्कूल जाने से बचने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा है. प्रेजेंटली इट अकर्ड टू हिम दैट ही विश्ड ही वॉज सिक. पहले तो उसके दिमाग में आया कि काश कि वो बीमार होता. देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल. अगर वो बीमार होता तो उसे स्कूल से घर आने की अनुमति मिल जाती, स्कूल न जाने का परमिशन मिल जाता, वो घर में ही रहता.
हियर वॉज अ वैग्यू पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ घर में रुक पाने की जो पॉसिबिलिटी थी वो बहुत ही कम थी, नहीं के बराबर थी। ही कैनवास्ड हिज सिस्टम, तो फिर अब क्या करे, उसने अपने सिस्टम को, अपने बॉडी को कैनवास किया, अपने बॉडी को उसने एग्ज़ामिन करने की कोशिश की और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की कि वो बीमार कैसे हो सकता है या फिर स्कूल जाने से क्या तरीका हो सकता है बचने का, वो खोज सके। नो एलिमेंट वॉज फाउंड, लेकिन अपना जब उसने सेल्फ इंस्पेक्शन किया तो उसमें कोई बीमारी उसको नहीं मिली। एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन, जब उसे अपने शरीर में कोई बीमारी नहीं मिली तो उसने अपने शरीर को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट किया। दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट कॉलिकी सिम्टम्स, और इस बार उसे लगा कि जैसे वो कॉलिकी सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सकता है, अपने पेट में भयंकर दर्द को महसूस कर सकता है। एंड ही बिगेन टू encourage them with considerable hope, और उसने अपने पेट दर्द को बड़े उम्मीद के साथ तलाशने की कोशिश कर दी। बट दे सून ग्रू फेबल, लेकिन बहुत ही जल्द उसको जो पेट में दर्द होने की संभावना थी बहुत ही जल्द समाप्त हो गई। एंड प्रेजेंटली डायड होली अवे, और अभी पूरी तरह से वो दर्द की संभावना समाप्त हो गई। ही रिफ्लेक्टेड फर्दर, उसने फिर विचार किया, फिर एग्जामिन किया। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज। जब उसने फिर से संभावना तलाशी तो उसने पाया कि उसके मुंह का जो ऊपर का अपर फ्रंट टीथ जो था, ऊपर के जबड़े का जो दांत था, दैट वॉज लूज, मतलब कि वो हिल रहा था। दिस वॉज लकी, ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रोन एज ए स्टार्टर, as he called it, when it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out and that would hurt. अब उसे ये भी लग रहा था कि अगर अपने मुंह के दांत के हिलने की बात वो अपने आंट के सामने रखेगा तो उसकी आंट क्या करेंगी, वो उसके दांत को उखाड़ देंगी और इससे उसे तकलीफ होगी। सो ही थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट, तो फिर उसने क्या किया, अपने आप को दर्द से, तकलीफ से बचाने के लिए दांत के दर्द को उसने रिजर्व में रख लिया। एंड सीक फर्दर, और कुछ दूसरे उपाय को उसने ढूंढना शुरू किया। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम, अब कुछ देर तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि किस तरीके से वो अपने नए बीमारी को तलाशे। एंड देन ही रिमेंबर्ड hearing the doctor tell about a certain thing that led up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. फिर अचानक से उसे एक डॉक्टर की बात याद आई। डॉक्टर साहब एक पेशेंट को बता रहे थे कि किस तरीके से 2 से 3 सप्ताह तक रहा जा सकता है अगर उंगली कट जाए तो। सो द बॉय eagerly drew his sore toe
from under the sheet and held it up for inspection. But now he did not know the necessary symptoms. However, it seemed well worthwhile to chance it. So he fell to groaning with considerable spirit. इस बार उसने अपने पैर को अपने शीट अपने चद्दर के अंदर से बाहर निकाला और बहुत ही ईगर वे में अपने पैर की उंगलियों में हो रहे दर्द को उसने महसूस करने की कोशिश की, उसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश की, परखने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो इसे क्या नाम दे, क्या सिम्टम्स होते हैं उस बीमारी का जिसका नाम उसे देना था, वो पता नहीं था। लेकिन फिर भी ये उसके लिए एक अच्छा अवसर था। So he fell to groaning with considerable spirit. तो फिर बहुत अच्छे ढंग से उसने कराहना महसूस किया कि किस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से कराहा जाए, दुख में दर्द में चिल्लाया जाए। But Sid slept on unconscious. जब वो कराह रहा था, झूठ मूठ का अपना दर्द महसूस करके चिल्ला रहा था, उस वक्त उसके बगल में सिड नाम का जो बच्चा था वो अनकॉन्शस मतलब इस प्रकार से सोया था जैसे कि बेहोश हो। Tom groaned louder and fancied that he began to feel pain in the toe. टॉम ने पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से कराहने की दर्द में कराहने की आवाज़ निकाली, ऐसा दिखाते हुए जैसे कि वास्तव में उसे अपनी पैर की उंगली में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। नो रिजल्ट फ्रॉम सिड, लेकिन इसका भी सिड के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। टॉम वॉज पैंटिंग विथ हिज एक्सर्शंस बाय दिस टाइम। टॉम ने जो फिजिकल जो मेंटल एफर्ट्स लगाए कराहने के लिए, चीखने के लिए, इससे वो पैंट कर रहा था, हाँफ रहा था। He took a rest and then swelled himself up and faced a succession of admirable groans. अब जब वो हाँफने लग गया, थक गया, तो उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर सांस भरी उसने और अच्छे ढंग से उसने कराहने का ये नाटक शुरू कर दिया। सिड स्नोर्ड ऑन, लेकिन सिड जो उसका फ्रेंड था उसके बगल में था, खर्राटे भर रहा था। इसका मतलब कि टॉम ने जो अभी तक प्रयास किया उसका सिड के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, टॉम वॉज एग्रेवेटेड, टॉम काफ़ी अनॉयड हो गया। ही सेड सिड सिड एंड shook him. This course worked well, and Tom began to groan again. सिड जब annoyed हो गया, गुस्से में आ गया, तो उसने सिड को ज़ोर से हिलाया और ज़ोर से हिलाने का ये तरीका उसका काम आ गया और टॉम फिर से एक बार ग्रोन करने लगा, कराहने लगा, दर्द से चिल्लाने लगा। सिड यॉन्ड, अब क्योंकि टॉम ने सिड को झकझोर दिया था तो सिड की नींद खुल गई और यॉन करते हुए अपने
हाथ पाँव को स्ट्रेच करते हुए, then brought himself up on his elbow with a snort and began to stare at Tom. सिड की नींद खुल गई। सिड अपने एल्बो पर झुकते हुए टॉम की तरफ देखने लगा। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग। टॉम कराहे जा रहा था, दर्द में चिल्लाया जा रहा था। सिड सेड, टॉम, से टॉम। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम टॉम। अब सिड पूछ रहा है, लेकिन टॉम की तरफ से सिड को कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं मिल रहा। हियर टॉम, टॉम, व्हाट्स द मैटर टॉम? एंड he shook him and looked in his face anxiously. टॉम के चेहरे को सिड बहुत ही एंसस वे में, बहुत ही उत्सुकता के साथ देख रहा। क्या हो गया टॉम को? पूछ रहा है, व्हाट्स द मैटर टॉम? टॉम मोन्ड आउट, ओह डोंट सिड, डोंट जॉगल मी। और टॉम ने कराते हुए सिड से कहा, सिड, मुझे जॉगल नहीं करना, मुझे हिलाना नहीं, मुझे झकझोरना नहीं। वाई, व्हाट्स द मैटर टॉम? आई मस्ट कॉल आंटी। क्यों टॉम, क्या हुआ? मैं बुलाता हूँ आंटी को। नो, नेवर माइंड, इट विल बी ओवर सून, मे बी। कोई बात नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डोंट कॉल एनीबडी, किसी को मत बुलाओ। टॉम ने सेड से कहा, बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन सो। लेकिन मुझे बुलाना चाहिए, तुम इस तरीके से दर्द में चिल्लाओ नहीं। टॉम, इट्स awful. हाउ लॉन्ग यू बीन दिस वे? कब से तुम्हें इस तरीके का दर्द हो रहा है टॉम? आवर्स, घंटों हो गए। आउच, ओह डोंट स्टार सो, सिड, यूल किल मी। टॉम ने सिड से कहा, इस तरीके से मुझे मत हिलाओ, तुम मेरी जान ले लोगे। टॉम, वाई डिडंट यू वेक मी सूनर? सिड ने टॉम से पूछा, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? ओ टॉम, डोंट, इट मेक्स मी फ्राइटेंड टू हियर यू। टॉम, व्हाट इज द मैटर? बार बार सिड टॉम से पूछ रहा है और टॉम उसे कुछ बता नहीं रहा। आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग, सिड ग्रोन। कराते हुए टॉम सिड से कहता है, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गॉन। ओह टॉम, यू एंड डाइंग, आर यू? टॉम ने कहा, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगा। तो इससे घबराकर सिड ने टॉम से कहा, टॉम, तुम मर नहीं सकते। क्या तुम मर रहे हो? आई फॉरगिव एवरीबॉडी, सिड ग्रोन। टेल हिम सो, सिड। एंड सिड, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl that's come to town and tell her. अब पूरी तरीके से ढोंग करते हुए टॉम सिड से कह रहा, मानो जैसे उसका अंतिम समय आ गया हो, जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टॉम सिड को दे रहा है अपने बिलोंगिंग्स के रिगार्डिंग। उसके जो विंडो सैश हैं, उसके जो कैट है एक आंख वाली, उसने ये कहा सिड से
कि ये प्रॉपर्टीज़ वो शहर में आई हुई उस नई लड़की को दे दे और उससे कह देगा। बट सिड had snatched his clothes and gone. Tom was suffering in reality now. So handsomely was his imagination working, and so his groans had gathered quite a genius tone. इस वक्त टॉम बहुत ही अच्छा अभिनय कर रहा था, सब कुछ रियल लग रहा था, बिल्कुल जेन्युइन टोन में अपनी बातें एक्सप्रेस कर पा रहा था। सिड फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड सेड, ओह आंट पोली, कम, टॉम्स डाइंग। इतना रियल लग रहा था टॉम का वो प्रिटेंशन कि उससे घबराकर सिड भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे गया और उसने आंट पॉली से कहा कि आंट पॉली आइए, टॉम मर रहा है। डाइंग? यस एम। डोंट वेट, कम क्विक। रबेज, आई डोंट बिलीव इट। बट शी फ्लेड अपस्टेयर्स। आंट पॉली को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि टॉम मर रहा है, लेकिन फिर भी शी फ्लेड अपस्टेयर्स, nevertheless, with Sid at her heels, and her face grew white too, and her lips trembled. ये सुनकर और टॉम को देखकर आंट पॉली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उनके होंठ भी कांपने लगे। When she reached the bedside, she gasped. और जब टॉम के पास उसके बेड के पास पहुंची तो शी गैस्प्ड, यू टॉम, टॉम, व्हाट्स द मैटर विथ यू? ओह आंटी, आई एम, व्हाट्स द मैटर विथ यू? व्हाट इज द मैटर विथ यू चाइल्ड? बार बार आंट पॉली टॉम से पूछ रही हैं, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, बताओ। ओह आंटी, माई सोर टोज मोटिफाइड। आंटी, मेरा जो सोर टो है, जो मेरे पैर की उंगली में दर्द है, वो मेरी जान ले रहा है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू अ चेयर एंड लाफ्ड अ लिटिल। जब उन्होंने टॉम की बात सुनी तो एक चेयर में समा गई, चेयर में बैठ गई और थोड़ा उन्होंने हंसा। देन क्राइड अ लिटिल, हंसने के बाद फिर थोड़ा उन्होंने रोया, चीखा। देन डिड बोथ टुगेदर, और फिर हंसने रोने का काम उन्होंने दोनों साथ में किया। दिस रेस्टोर्ड हर एंड शी सेड, टॉम, व्हाट अ टर्न यू डिड गिव मी। क्या क्या चक्कर में तुमने डाल दिया मुझे टॉम। नाउ यू शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस। अभी अपनी बकवास बंद करो और इससे बाहर आओ। द groans ceased and the pain vanished from the two. आंटी के इस तरीके से बोलने के बाद टॉम का जो कराहना था, दर्द में जो चीखना था, जो उसके पैर की उंगली का दर्द था, सब समाप्त हो गया। द बॉय फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड ही सेड, आंट पॉली, इट सीम्ड mortified and it hurt so, I never minded my tooth at all. अब टॉम अपनी कोशिश कर रहा है अपने आंट पॉली को समझाने की, और पैर की उंगली के दर्द के साथ
उसने ये बताया कि उसे इतना दर्द हुआ कि उसने अपने दांत के दर्द को बताना वो भूल गया। योर टूथ इंडीड। जब उसने अपने दांत के दर्द की बात कही तो आंट पॉली ने कहा, सचमुच तुम्हारे दांत में तकलीफ है? व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ? क्या हुआ तुम्हारे दांतों को? वन ऑफ देम्स लूज and it aches perfectly awful. There, there now, don't begin that groaning again. Open your mouth. Well, your tooth is loose, but you are not going to die with that. आंट पॉली ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना मुंह खोलो। और मुंह खोलने के बाद जब उन्होंने देखा तो कहा, तुम्हारा एक दांत हिल तो रहा है, लेकिन इससे तुम मरने वाले नहीं हो, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। Saying that, Auntie was about to get a silk thread and a chunk of wire out of the kitchen when Tom cried out, oh, please, Auntie, don't pull it out. It doesn't hurt anymore. I wish I may never stare if it does. Please don't, Auntie. I don't want to stay home from school. Oh, you don't you? So all this row was because you thought you'd get to stay home from school and go fishing. Tom, Tom, I love you so, and you seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness. Now that tooth will come out on its own. Go to sleep now, and we will decide what to do when you wake up. और लास्ट में आंट पॉली ने कहा कि तुम हर वो कोशिश करते हो जिससे मेरा दिल टूट जाए, दुखे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अभी तुम सोने जाओ, सोकर उठने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे तुम्हारे दांत के साथ क्या करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर written by Mark Twain. I hope you would have understood this story. Thank you very much.